یہاں ایک اور بات ہے جو آپ کو یاد ہوگی کہ ایک رجسٹرڈ نرس نے اپنی 22 سالہ شادی کو برباد کر دیا۔ میں نے کہانیاں سنانے سے پہلے کبھی اندازہ نہیں لگایا ہوگا کہ نرسیں اتنی بری تھیں۔ میں 50 سال کا ہوں اور میری بیوی 51 سال کی ہے۔ ہماری شادی اس وقت ہوئی جب میں 28 سال کا تھا۔ وہ فلوریڈا یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ جب ہم سے ملاقات ہوئی تو وہ بیچلر آف سائنس کی ڈگری کے بعد جا رہی تھی اور وہ اپنا مقصد ایلیسس بننا چاہتی تھی، پریکٹیشنر۔ میں نے کالج ختم نہیں کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنا کاروبار کرنے کی خواہش کی تھی اور میں نے صرف اپنی مارکیٹنگ فرم شروع کی تھی جس نے پہلے سال میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جس نے کالج ختم کرنے کے بعد ہم نے ڈیٹنگ جاری رکھی لیکن ٹی آئی نہیں کی، اور 6 سال بعد تک میں نے اس کی نرسنگ سکول کی ادائیگی میں مدد کی۔ چند آن لائن نرسنگ پروگرام، ایک نرس پریکٹیشنر نے اس کی تعلیم کے لیے کسی بھی قسم کی ادائیگی میں مدد کی۔ میں نے اس کی مدد کی۔ ایک کہانی سنائی کہ جب ایک آدمی اپنی بیوی کو اس کے کیریئر میں آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہے تو رشتہ قائم نہیں رہتا تھا۔ عجیب بات ہے کہ میری مارکیٹنگ فرم نے سچ مچ شروع کر دیا۔ دوسرے سال کے بعد جب ہم اکٹھے نہیں رہتے تھے، وہ اب بھی گھر میں ہی رہتی تھی اور میں بھی تھا، لیکن کاروبار شروع ہونے کے بعد میں نے جیکسن ویل فلوریڈا میں ایک مکان خریدا جہاں میں اس وقت رہتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی پر بھروسہ کیا۔ اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں دی کہ اس نے ہسپتال میں کام کرنے کے بعد اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ جب اس نے ہسپتال میں کام کرنا شروع کیا، صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک شروع کرنے کے لیے شفٹ کرے اور پھر شام 7 بجے پر سوئچ کرے۔ صبح 7 بجے کی شفٹ تقریباً 6 ماہ کے بعد اس کا یہ شیڈیولنگ تقریباً 1 سال تک چلتا رہا۔ پھر وہ صبح کی شفٹ میں واپس چلی گئی۔ ہمارے پاس بچے نہیں تھے۔ ہم نے بچے پیدا کرنے سے روک دیا جب تک کہ ہم نے اپنے مالی معاملات کو بہتر طریقے سے سنبھالا، جو ہم نے کیا، لیکن بچے پیدا کرنے کا موضوع پھر کبھی نہیں آیا۔ ہمارا معمول تھا کہ جب میں وہ سب کچھ بنا دیتی تھی تو وہ کھانا بنا دیتی تھی۔ شروع میں ہموار یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ساتھ سفر کرتے تھے، ڈیٹ نائٹ ہوتی تھی۔ جب بھی ہمارا اختلاف ہوتا تھا، میں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہم ایک دوسرے سے پاگل نہ ہوں۔ میں نے اپنے والدین سے سیکھا ہے کہ کبھی کبھی وہ کام کے بعد کچھ دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتی تھی۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میرے دوستوں کا ایک حلقہ تھا۔ میں کبھی کبھی ساتھ گھومتا تھا۔ ایک رات اس نے مجھے ایک متن بھیجا کہ وہ اپنے چند کارکنوں کے ساتھ گھر سے باہر جانے کے بعد کہتی ہے۔ رات 9 بجے میں نے اس سے کہا کہ اچھی طرح سے مزہ کرو۔ وہ تقریباً 4 بجے تک گھر نہیں پہنچی۔ صبح میں نے اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس کی تعریف نہیں کی، کہ ہم ایک بہت بڑی لڑائی میں پڑ گئے اور یہ جسمانی تھا، کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں نے اسے نہیں مارا۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ اس نے پولیس والوں کو مجھ پر بلایا۔ جب پولیس ہمارے گھر پہنچی تو اس نے ان سے کہا کہ میں نے اسے چیک کیا اور اسے بتایا کہ میں اسے چیک کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس کہیں جانا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اس رات گھر چھوڑ دیا اور کچھ دن اپنے والدین کے ساتھ رہا۔ جب میں گھر واپس آیا تو عجیب بات تھی کہ وہ مجھ پر ایسی تھی جیسے کچھ نہیں ہوا۔ اگر یہ میں ہوتا تو مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کے ساتھ سو جاتی، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے پولیس کے سامنے مجھ پر جھوٹ بولا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس نے سب کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا جس سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس صبح اتنی دیر سے گھر آنے کی وجہ سے اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے وقت کھو دیا ہے۔ ہاں، میں شرط لگاتا ہوں کہ اس وقت تک میں نے اسے معاف کر دیا تھا جب ہم اپنی شادی میں 10 سال کے مارک پر تھے، جو ہماری اب تک کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے محسوس کیا کہ وہ کام کے بعد زیادہ باہر جانا شروع کر دیتی ہے اور مختلف لباسوں میں گھر آنے لگتی ہے، نہ کہ وہ کام کے لیے نکلی تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر گئی تھی
तो वो अपने पुराने काम के बाद घर से बाहर जाती थी और उससे पूछा कि वो उन अच्छे लिबासों में घर क्यों आ रही है। लेकिन मैंने आखिरी बार उसका सामना नहीं किया था। मैं जिस्मानी तौर पर हुआ था और उसने मुझ पर कानून का मुतालबा किया था कि हमारे साथ मिलकर वक्त भी मारा गया। हमारे डेट नाइट कम होने लगी और सेक्स इस तरह नहीं हुआ जितना वो ठीक होता था। अगर आप जिनसी ताल्लुकात नहीं कर रहे हैं तो ताल्लुकात में तब्दीली आती है। इसी वजह से जब मैं दफ्तर से फारिग हुआ तो एक दिन में जब दफ्तर से फारिग हुआ तो मैंने घर से कुर्बत शुरू कर दी। मेरे दरवाजे तक चलते हुए वो मर्द मेरे पास आया और मुझसे एक मुसद्दका खत के लिए दस्तखत करने को कहा। मैंने पहले भी मुसद्दका खतूत पर दस्तखत किए हैं, लेकिन उस खत पर मेरा हाथ से लिखा हुआ नाम था। ये दिलचस्प बात है कि जब मैंने उसे खोला तो उस खत में एक बम गिरा। उस खातून ने खत में मुझे बताया कि मेरी बीवी अपने शौहर के साथ मुझे धोखा दे रही है और उसके शौहर को नहीं मालूम कि वो जानता है कि कभी कभी आपको मालूम हो सकता है कि आपका साथी आपको किसी गैर मुतवक्के जरिया से धोखा दे रहा है। क्योंकि इस मामले में जैसे ही मैंने खत में उसका फोन नंबर देखा, मैंने उसे फोन किया। जब उसने जवाब दिया तो मैंने उसे बताया कि उसके शौहर ने मुझे बताया कि उसने मुझे इस खत पर कैसे धोखा दिया है। विक्टोरिया सीक्रेट की तरफ से मेल में फ्लायर और उनकी शादी के 16 सालों में उसके शौहर ने उसे विक्टोरिया सीक्रेट से कभी कुछ हासिल नहीं किया। ये वाकई अजीब है कि एक ऐसा शख्स जिसकी शादी इतने अरसे से हुई है कि उसने अपनी बीवी को कभी भी ऐसी दुकान से कुछ हासिल नहीं किया जो खास तौर पर खवातीन के लिए दिलचस्प है। इसे फौरी तौर पर मालूम हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, लिहाजा उसने अपने शौहर को बताया कि वो काम पर जाने के लिए कुछ दिनों में अपने शौहर से मुलाकात कर रही थी और उसके वालिदैन को बताया गया था पेंसाकोला फ्लोरिडा। लेकिन वो कभी अपने वालिदैन से मिलने नहीं गई। वो और उसका एक दोस्त गाड़ी में गया और अपने शौहर के पीछे पीछे आया। इसने यहां तक कि मुझे बताया कि वो अपने शौहर के पीछे मेरी जगह पर आए। बज़ाहिर उसका शौहर मेरी बीवी के पीछे हमारी जगह पर आया और उसके अंदर जाने से पहले ही उन्होंने बोसा दिया और उसने मुझे वक्त और तारीख भी दी। मुझे यकीन नहीं आया कि मैं घर में था। इस रात उसने हमारे घर के बाहर एक और मर्द की परवाह की जब मैंने उस औरत को चूम लिया था। वासे पर धोखा दे रहा था। उसके पास कुछ गेंदें थीं। मैंने उससे पूछा कि क्या उसके पास इस सब का सबूत है। मैंने उससे ये भी पूछा कि वो कैसे जानती है कि वो शादीशुदा है। उसने इशारा किया कि उसने यहां डोवल काउंटी में ऑनलाइन जायदाद के रिकॉर्ड देखे। मैंने फिर उससे पूछा कि उसने उससे क्यों सामना नहीं किया। उसने कहा कि वो बदला चाहती है और उसे माली तौर पर दफन करने जा रही है, और उसने कहा कि उसने मुझे 1 घंटे के अंदर ईमेल भेजने के लिए डॉक्टर को बताया कि वो मुझे ईमेल भेजेगी। लिंक और वहां उनके हाथ पकड़े बोसे लेने की तस्वीरें थीं। यहां तक कि वो अपने घर में मुबाशरत करते हुए उसने कहा कि एक बार जब उसने विक्टोरिया सीक्रेट फ्लायर जीत लिया तो उसने अपने घर में खुफिया कैमरे लगाए। मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन को देखा। मैं वाकई में नहीं जानता था कि क्या करूं। मैं अभी दुकान में था। तकरीबन 1 घंटा बाद मेरी बीवी दिखाई देती है और उसने गुस्से से आपको बताया और मैंने रोना शुरू कर दिया। उसके बिल्कुल पास से गुजरा जब वो रो रही थी। मैंने अपने ख्यालात को इकट्ठा करने की कोशिश में 1 घंटा इधर इधर घूमा और फैसला किया कि मुझे किसी वकील से बात करने की जरूरत है। मैं अपने किसी दोस्त से बात नहीं करूंगा। वो शायद उसे बताएंगे कि मैं उसे धोखा दे रहा था। जब मैं घर वापस आया तो मेरी बीवी बाथरूम में थी और दरवाजा बंद था।
मुझे नहीं मालूम कि ये क्या था, लेकिन किसी चीज ने मुझसे कहा कि मैं उनसे बात कर रहा था और वो अपने बेडरूम की तरफ चल रही थी और वो किसी से प्यार कर रही थी। और क्या हम ये काम कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ इतना सुनना था कि मैंने जानबूझकर कुछ शोर मचाया ताकि वो मुझे सुन सके। इसी वक्त जब वो सोने के कमरे से बाहर निकली और मुझे गले लगाने के लिए भागी, मैंने साथ की ला और उसे गले लगाया और उससे पूछा कि क्या गलत है। उसने मेरे चेहरे पर झूठ बोला। उसने कहा कि उसे काम पर किसी ऐसी चीज के लिए मलामत की गई है जो उसने नहीं किया था। अगर मैं जानता हूं कि मैं उसके साथ सो रहा था। अगली सुबह मैंने उसके साथ कुछ शुरू करने की कोशिश नहीं की। मैंने तलाक के वकील से मुफ्त मशवरा किया। फिर मैं अंदर गया और उससे बात की। मैंने उसे बताया कि मैं तलाक चाहता हूं और उन्हें बताया कि उसने मुझे क्यों बताया कि फ्लोरिडा एक गैर तलाक वाली रियासत है। उसने बुनियादी तौर पर मुझे बताया कि अगर मुझे अपनी बीवी के अंडरवेयर का रंग पसंद नहीं है तो मैं उससे तलाक के लिए फाइल कर सकता हूं। और उसने मुझसे कहा कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मैं तलाक के लिए दरखास्त दे सकता हूं। मालियात के बारे में मैंने उसे बताया कि मेरी अपनी मार्केटिंग फर्म है और मेरी बीवी एक नर्स थी। उसने घर के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि ये हमारे दोनों के नाम है और पूछा कि क्या हमारे पास कोई मुश्तरका बैंक अकाउंट है। मैंने उसे बताया कि हमारे पास एक सेविंग अकाउंट है जो हम दोनों ने शेयर किया है और हमारे पास 2 क्रेडिट कार्ड है। मैंने आगे बढ़कर उस दिन तलाक के लिए फाइल कर दी। अच्छी तरह से सब कुछ सामने आया और 1.5 माह बाद उसने अपनी बीवी को तलाक देने के लिए कागजात भेजे थे और वो मेरे वालदैन के साथ तलाक ले चुकी थी। वो अपने वालदैन के घर पर थी। वो किसी और काउंटी में थी। मुझे यकीन है कि उस काउंटी में प्रोसेस सर्वर का लाइसेंस होना जरूरी है और मुझे लगता है कि मैंने उसके लिए इजाफी रकम अदा की है। मेरी बीवी ने मुझे फोन किया कि मैंने उसे कहा कि आप करेंगे। जब आप वापस आएंगे तो मालूम करें कि मैंने तलाक के लिए क्यों दरखास्त दी थी। वो इतवार की सुबह वापस आ गई थी और मैंने उसे बताया कि तलाक देने के लिए उसका मेरे साथ सलूक क्यों बदल गया। आमतौर पर ऐसा होता है कि कभी कभी वो मुझे कहने लगती है, नजरअंदाज कर रहा हूं। मैंने उसके साथ मंगनी भी नहीं की। मैंने बस ठीक कहा और फालतू सोने के कमरे में चला गया। अगले चंद हफ्ते खौफनाक थे। हम अजनबी थे जो सब कुछ सुनकर घर में तलाक ले रही थी। बाजार में घरों में बचत पर निस्त, जैसा कि मैं ये 8 दिसंबर 2023 को लिख रहा हूं। जब से मेरी साबिका बीवी वहां से चली गई है, उसने अपना अपार्टमेंट हासिल कर लिया है। मुझे उसकी एपी की बीवी ने बताया कि वो दोनों एक साथ रह रहे हैं और उसकी तलाक की समाअत जल्द हो जानी चाहिए। ये मेरी बीवी के एपी के लिए ठीक नहीं हुआ। इसने एक घर खो दिया और उसे $11,800 फी माह के लिए और बच्चे की मदद के लिए $11,800 फी महीना $22,800 अदा करना होंगे। इनके 2 बच्चे जो सिर्फ 2 साल के हैं, क्योंकि इनके बच्चे तकरीबन 18 साल के हैं। मेरा अंदाजा है कि कुछ मामलात में धोखाधड़ी महंगी हो सकती है। चंद हफ्ते बाद मैंने सुना कि मेरी साबिका बीवी की APLOL से बाहर निकल गई है और दूसरी औरत के साथ चली गई है। जब मुझे यह मालूम हुआ तो मैंने अपना नंबर तब्दील कर दिया और अपनी साबिका बीवी को ब्लैक कर दिया। मैंने अपनी तमाम फेसबुक तस्वीरें को डिलीट कर दिया और अब मैं उसकी शक्ल में वापस आने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अगर कोई एक ही चीज से गुजर रहा है तो एक दिन में उसे ठीक करने के लिए ले लो। मुझे अपनी कहानी बताते हुए बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज से गुजर रहे हैं, कभी कभी इससे भी बदतर। ओह, एक आखिरी बात। मेरी साबिका अहलिया सुबह मेरे दफ्तर में बात करने आई। मैंने उसे कहा कि कभी मेरे दफ्तर न आना। मैंने उसे यह भी कहा कि अगर वो वापस आई तो मैं उसे रोक दूंगा। अगर वो आपकी बहुत सी गलत कहानियां सुनाने के बाद आपको जानती है कि वो क्या गलत कह रही है। मियाँ बीवी
या धोखाधड़ी से पहले रिश्ता खत्म करें। अगर आप खुश नहीं हैं तो अपने साथी को इन तमाम सहनी जिम्नास्टिक्स में मत डाल। चेन, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अगर आप उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो बस ये जान लें कि बातचीत करने में क्या हरज है। इतने लोगों को सिर्फ बातचीत करने में दुश्वारी होती है। आप जानते हैं, बस अपना मुंह खोलें। जब आपने धोखा देना शुरू किया तो आप अपना मुंह खोलें और अगले वक्त तक अपने साथी से बात क्यों नहीं कर सकते।